حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. سوال اور جواب. یہودی بادشاہ نے مسلمانوں کے بازار میں آ کر 4 سوال کیے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اردو پڑھا کے کیا فائدہ ہے، ارے بھائی اردو تو مرتے دم تک کام آئے گا. اردو عربی آپ کو قبر حشر میدان محشر تک کام آئے گا. توجہ ہے، بولے گا نہیں کوئی. رب سے پہلے کیا تھا، اس یہودی بادشاہ کا سوال. اور لوگوں کا مجمع جمع ہوتے ہوتے بہت لوگوں کا مجمع جمع ہوا. ایک سے بڑھ کے ایک عالم، ایک سے بڑھ کے ایک خطبہ، ایک سے بڑھ کے ایک حافظ، ایک سے بڑھ کے ایک قرآن پڑھنے والے، بہت لوگوں کا مجمع ہے. اتنے بڑے مجمع میں اس یہودی بادشاہ نے کیا کہا، رب رب کرتے ہو، اللہ اللہ کرتے ہو، خدا خدا کہتے ہو، یہ بتاؤ کہ تمہارے رب سے پہلے کیا تھا. اب اس یہودی بادشاہ کا دوسرا سوال تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ تمہاری عبادتوں کو کیسے دیکھ لیتا. تم عبادت کرتے ہو بھائی، ہم راجا گاؤں میں عبادت کرتے ہیں، کوئی پواخالی میں عبادت کرتے ہیں، کوئی بھیرانی میں عبادت کرتے ہیں، کوئی انڈیا میں عبادت کر رہے ہیں، کوئی بنگلہ دیش میں عبادت کر رہے ہیں. عبادت تو ہر جگہ ہو رہی ہے، مگر تم عبادت کرتے ہو ہر جگہ، پھر رب تبارک و تعالیٰ تمہاری عبادتوں کو کیسے دیکھ لیتا ہے. اب اس یہودی بادشاہ کا تیسرا سوال تھا کہ رب کا چہرہ اس وقت کس طرف کو ہے. توجہ سے سنیے گا، رب کا چہرہ اس وقت کس طرف کو ہے. اب سارے کے سارے لوگ پریشان، رب کا چہرہ اس وقت کس طرف کو ہے. چوتھا سوال اس یہودی بادشاہ کا یہ تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے. سمجھ گئے نا 4 سوال. یہ 4 سوال اس یہودی بادشاہ نے کیا مسلمان کے بازاروں میں. اب سارے کے سارے علماء دیکھتے ہی رہ گئے، سارے کے سارے حفاظ کرام دیکھتے رہ گئے. کسی کے پاس جواب نہیں کہ 4 سوالوں کا جواب دیا جائے. مگر مدرسہ جیسے چھٹی ہوئی، مدرسہ میں بچے پڑھتے ہیں نا، تو جیسے ہی مدرسے میں چھٹی ہوئی تو مدرسے سے آنے والے بچے، ایک چھوٹا سا ننھا سا منا سا بچہ جیسے ہی گھر کی طرف لوٹے تو ایک بچہ آ کر کہنے لگا یہ مجمع کس چیز کا ہے. چھوٹا سا بچہ ہے. کہا ایک یہودی بادشاہ آیا ہوا ہے، اس نے 4 سوال رکھا ہے کہ اللہ اللہ کرتے ہو، اللہ سے پہلے کیا تھا، ہاں، اور رب تبارک و تعالیٰ تمہاری عبادتوں کو سجدوں کو کیسے دیکھ لیتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کا چہرہ اس وقت کس طرف کو ہے. رب تبارک و تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے. یہ 4 سوال کیا. تو اس بچے نے کہا اتنے بڑے مجمع میں کسی کے پاس جواب نہیں ہے. کہاں کوئی تو جواب نہیں دینے پا رہا. تو اس بچے نے کہا ان 4 سوالوں کا جواب میں دینے کے لیے تیار ہوں. اب لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. ارے اتنے بڑے بڑے ائمہ کرام، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے خطبہ، بڑے بڑے حفاظ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، جواب نہیں دے پا رہے، اور تو ایک چھوٹا سا بچہ کیا جواب دے دے گا. تو وہ بچہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں مجھے جانے تو دو، میں ان 4 سوالوں کا جواب دے دوں گا. مگر کوئی اس کی سنتا نہیں. آخر کار وہ بچہ بھیڑ کو چیڑتا ہوا، مجمع کو پھاڑتا ہوا کسی طرح سے بادشاہ تک پہنچ جاتا ہے. وہ چھوٹا سا بچہ بادشاہ تک پہنچ جاتا ہے اور سامنے کھڑے ہو جاتا ہے اور عرض کرتا ہے او یہودی بادشاہ بتا تیرا 4 سوال کیا ہے. میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. اب سارے کے سارے علماء، سارے کے سارے لوگ پریشان. مجمع میں، اتنے بڑے مجمع میں لوگ دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا بچہ جواب دیں گے. یہودی بادشاہ کہہ رہے تو کیا جواب دے گا. اتنے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، جواب نہیں دے پا رہے تو کیا جواب دے گا. تو اس بچے نے کہا میں دیکھنے میں اگر سے چھوٹا ہوں مگر جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہوں. اگرچہ دیکھنے میں چھوٹا ہوں مگر جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہوں. تو علماء کرام لوگوں نے کہا اچھا بادشاہ سلامت، جب یہ چھوٹا سا بچہ جواب دینا چاہتے ہیں تو اس کو اجازت دے دیجئے نا، اس میں کون سی بڑی بات ہے، اجازت دے دیجئے. بچہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کس طرح سے وہ جواب دیتے ہیں. یہودی بادشاہ نے سوچ بوجھ کر کہا اچھا ٹھیک ہے بچہ بتا تو رب سے پہلے کیا تھا. اس بچے کا جواب سنو. اس بچے نے جو جواب دیا، اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے، دنیا حیران ہے، دنیا پریشان تھی کہ اس چھوٹے سے ننھے سے مننے سے بچے نے
आखिर कैसे जवाब दे दिया। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ। उस बच्चे ने कहा उस बादशाह से, ऐ बादशाह जरा ये तो बता कि 10 से 1 तक गिने कि 10 से नीचे क्या था। उस बादशाह ने कहा 10 से नीचे 9, 9 के नीचे क्या 8, 8 के नीचे क्या 7, 7 के नीचे क्या 6, 6 के नीचे क्या 5, 5 के नीचे क्या 4, 4 के नीचे क्या 3, 3 के नीचे क्या 2, 2 के नीचे क्या 1, 1 से पहले क्या था। यहूदी बादशाह खामोश। देखिए बाद में कुछ नहीं होता है। 1 के नीचे क्या था। यहूदी बादशाह की बोलती बंद कर दी उस छोटे से बच्चे ने। यहूदी बादशाह ने कहा कुछ नहीं था। इसी तरह रब से पहले कुछ नहीं था। रब है, रब था, रब रहेगा। अच्छा लगा, अच्छा लगा। अब दूसरा सवाल। उस बच्चे ने कहा बादशाह साहेब बताइए तो सही, बादशाह सलामत बताइए तो सही, दूसरा सवाल क्या है आपका। तो उस यहूदी बादशाह ने कहा अरे नमाज तो तुम हर जगह पढ़ते हो, हर शहर में, हर गांव में, हर नगर में, हर डगर में, हर कस्बे में नमाज होती है। रब तो एक है, तो फिर रब तबारक व तआला तुम्हारी इबादतों को, तुम्हारे सजदों को रब तबारक व तआला कैसे देख लेता है। तो उस बच्चे ने जो जवाब दिया तारीख गवाह है। अल्लाह अकबर। उस बच्चे ने कहा ओ बादशाह एक हांडी बुलाओ। तो उस बच्चे ने कहा कि एक हांडी लाओ, हांडी माना देख जा कुछ हम देख, एक हांडी लाओ। एक हांडी लाया गया, उसमें पानी डाला गया और उस छोटे से बच्चे ने उस बादशाह से कहा ए बादशाह जरा इस हांडी के नीचे सर नीचे करके देख, इसमें क्या नजर आता है। सर नीचे करके देख इस हांडी में तुम्हें क्या नजर आता है। तो बादशाह ने कहा इसमें तो मेरा चेहरा नजर आता है, इसमें मेरा चेहरा नजर आता। तो उस बच्चे ने कहा क्या साफ नजर आता। कहा बिल्कुल साफ नजर आता। क्लियर नजर आता। हाँ बिल्कुल क्लियर नजर आता है, मेरा चेहरा इसमें नजर आता है। अल्लाह अकबर। उस छोटे से बच्चे ने कहा ऐ बादशाह जिस तरह से पानी में तू अपना चेहरा देख सकता है, तू अपना शक्ल देख सकता है, इसी तरह से रब तबारक व तआला पूरी दुनिया की इबादतों को देख सकता है। इसी तरह रब तबारक व तआला तमाम इबादत करने वाले के इबादतों को, सजदों को देख लेता है जिस तरह से तूने पानी के अंदर अपना चेहरा को देखा। 2 सवाल पूरा हो गया। तीसरा सवाल क्या था कि रब का चेहरा किस तरफ को। तीसरा सवाल ना ये रब का चेहरा इस वक्त किस तरफ को है। तो उस बच्चे ने जो जवाब दिया दुनिया हैरान थी, तारीख गवाह है। उस बच्चे ने हुक्म दिया कि चिराग बुलाओ। चिराग बुलाया गया, चिराग लाया गया। बादशाह से कहा हुक्म दो कि इसको जलाया जाए। चिराग को जलाया गया और उस बच्चे ने उस बादशाह से कहा ऐ बादशाह अब जरा ये तो बता दे कि इस चिराग की रोशनी किस तरफ को है। भाई ध्यान है ना, ध्यान है ना क्या कह रहा हूँ। उस बच्चे ने कहा बादशाह से कि बादशाह ये तो बता दे कि चिराग की रोशनी किस तरफ को है। तो बादशाह ने मजबूर होकर कहा चिराग की रोशनी तो चारों तरफ है। भाई एक तरफ रहती है क्या चिराग की रोशनी। बादशाह ने कहा चिराग की रोशनी चारों तरफ है। तो छोटे से नन्हे से मुन्ने से बच्चे ने कहा कि रे रब का नूर तो अल्लाह कलाम पाक में फरमाता है अल्लाह हो नूर समावाति वल अर्द। अल्लाह तो इतना बड़ा नूर है कि उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। जब एक चिराग की रोशनी चारों तरफ फैल सकती है तो रब तो नूर ही नूर है। उस नूर का अंदाजा कौन लगा सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब चौथा सवाल बचे। चौथा सवाल क्या है भाई, चौथा सवाल क्या है याद रखें। चौथा सवाल क्या बताया था मैंने, रब तुम्हारा का बताला इस वक्त क्या कर रहा है। अब उस बच्चे का दिमाग देखो, वो छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा अगरचे है, मगर उस बच्चे ने कहा बादशाह सलामत। 3 सवाल का जवाब दे दिया, चौथे सवाल का जवाब मैं ऐसे ही नहीं दूंगा। अब क्या इनाम रखे थे वो बच्चा, हाँ ना पैसे मांगे थे, कुछ नहीं। उस बच्चे ने क्या कहा बादशाह से कि बादशाह सलामत
चौथे सवाल का जवाब मैं उसी वक्त दूंगा कि आप कुर्सी से नीचे उतरिए और मुझे कुर्सी पर बैठाइए। आप कुर्सी से नीचे उतरिए और मुझे कुर्सी पर बैठने का हुक्म दीजिए। अब बादशाह भाई, यहूदी बादशाह, अब इतनी बड़ी बात, तो लोगों ने कहा बादशाह सलामत, 3 सवाल का जवाब दे दिए। जब एक बच्चा कह रहा तो बात मान जाए, बादशाह के इंसल्ट हो जाना, तो बादशाह कहा मानते। फिर लोगों का मजमा है, लोगों ने हल्ला मचाया कि बादशाह सलामत बात मान लीजिए। बच्चे का वो जवाब देने के लिए तैयार है, जवाब सुन लीजिए। अल्लाह अकबर। बादशाह को लोगों ने मजबूर किया, बादशाह को जमीन पर उतार दिया। उस बच्चे ने, बच्चा जाकर कुर्सी पर बैठ गया, वो बादशाह जमीन पर बैठ गए। कुर्बान जाओ। बच्चे ने अर्ज किया, ओ बादशाह अब सुनना चाहता है, चौथा सवाल तेरा क्या था कि रब तबारक व तआला इस वक्त क्या कर रहा है, तो सुन ले। रब तबारक व तआला इस वक्त ये कर रहा है कि एक बच्चे को कुर्सी पर बैठाकर एक बादशाह को जमीन पर उतार दिया। बच्चे को कुर्सी पर बैठाकर एक बादशाह को जमीन पर उतार दिया है। कुर्बान जाओ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम लोग बड़े किस्मत वाले हैं। अपनी किस्मत पर नाज करो, जितना ही नाज करोगे उतना ही कम है। क्यों कि वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं, बल्कि हमारे ही मजहब के वो बच्चे कोई आम बच्चे नहीं थे, बल्कि हमारे आपके अहले सुन्नत वल जमात के इमाम आजम नुमान बिन साबित थे, जिसको दुनिया इमाम आजम के नाम से जानती है। सुभान अल्लाह। इसी बात पर हमारे सेक्रेटरी मास्टर सरफराज भाई ने 100 रुपए दिया है। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत दे, इन्हें हर बला हर परेशानी से महफूज रखे। तो वो भी हमारे ही मसलक के थे। कौन है वो? कौन बच्चा थे? नुमान बिन साबित, जिनके मसलक पर हम चलते हैं, जिनके मसलक पर बड़े बड़े अकाबीर चलते हैं। कौन है वो? इमाम आजम। हमारे इमाम कौन है? इमाम आजम। वो हमारे इमाम आजम, हमारे गौसे पाक, हमारे ख्वाजा करीम नवाज, हमारे मखदूम अशरफ जागिर सिमनानी, हमारे साबिर पाक, हमारे अच्छे रजा, प्यारे रजा, हमारे रजा, हम सबके रजा, हुजूर इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा खा, हमारे मुफ्ती आजम हिंद, हमारे हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमत व रिजवा, हमारे। इसीलिए लोग आज हमें बरेलवी कहते हैं। क्यों बरेलवी से चिर है? इसलिए कि हमारा निस्बत इमाम आजम से, इमाम आजम की निस्बत इमाम हुसैन से। एक और बात अर्ज करता हूँ, हमें बरेलवी कहते हैं। क्यों बरेलवी कहते हैं? मुख्तसर में समाअत कर लीजिए ताकि इसका जवाब देने में आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। लोग हमें बरेलवी कहते हैं। बरेलवी कोई नया मसलक नहीं है, बल्कि बरेलवी हमें कहां से कहां तक पहुंचाते हैं। इस बात को ध्यान से सुनिए। हम बरेलवी को ज्यादा फॉलो करते हैं। क्यों कि इमाम हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाए, इस्लाम फैलाने वाली जात का नाम हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज है। तो आज हमारे ईमान को बचाने वाली जात का नाम इमाम अहमद रजा। तो बरेलवी क्यों कहते हैं? तो गिनना शुरू कर दो, और अगर पढ़े हो तो समझो कि बरेली में 5 हरफ है। इसी तरह से अजमेर गिन लो, अजमेर में भी 5 हरफ है। इसी तरह से बगदाद गिन लो, बगदाद में भी 5 हरफ है। इसी तरह से करबला चला जाओ, करबला में भी 5 हरफ है। अब लोगों को चिर क्यों नहीं होगा? अहले सुन्नत वल जमात को इमाम अहमद रजा से निस्बत है, बरेली से निस्बत है, बरेली से हमको निस्बत है। इसलिए कि जब हम चलने नहीं पाएंगे, समंदर में नहीं चल पाएंगे, समंदर में नहीं तैर पाएंगे, तो बरेली वाले अहमद रजा का दामन पकड़ लेंगे। वो हमें वो दरिया, वो समंदर पार करा देंगे। बरेली के इमाम अहमद रजा हमें अजमेर तक पहुंचा देंगे। जब हम उस कश्ती में नहीं पार हो पाएंगे, वो दरिया नहीं पार कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतनी आमाल नहीं होंगे, हम समंदर नहीं कर पाएंगे, दरिया नहीं कर पाएंगे। उधर ख्वाजा गरीब नवाज का दामन पकड़ लेंगे, उधर
इमाम अहमद रजा हमें ख्वाजा गरीब नवाज तक पहुंचा देंगे, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज हमें बगदाद तक पहुंचा देंगे, और बगदाद वाले पीराने पीर, रोशन जमीर, बड़े पीर, दस्तगीर हुजूर गौसे पाक हमें करबला तक पहुंचा देंगे। और जब हम करबला तक पहुंच जाएंगे, करबला वाले इमाम हसन, इमाम हुसैन हमें अपने आका व मौला हुजूर आकाए नामदार, मदनी ताजदार हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक हम पहुंच जाएंगे। हम वसीला वाले हैं। जब हम सरकार तक पहुंच जाएंगे तो सरकार अपनी उम्मतों को अपने दामन में छुपा लेंगे, क्योंकि सरकार का फरमान है, जिसने मेरे नवाजों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने खुदा से मोहब्बत की, और जिसने खुदा से मोहब्बत की उसका बेड़ा पार हो। वो दुनिया में भी कामयाब, मरने के बाद कब्र में भी कामयाब। इसीलिए लोग आज अहले सुन्नत वाल जमात से चिढ़ते हैं। तो बातें तो बहुत सारी बता दी, इसी पर अगर अमल कर लोगे तो दुनिया बदल जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी, मुकद्दर संवर जाएगी। अल्लाह के वास्ते कह रहा हूँ, किरदार अपनाओ, अच्छा अखलाक पैदा कीजिए, अच्छी किरदार पैदा कीजिए। फिर देखिए हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन की माँ कौन थी? कुरान पढ़ने वाली। गौसे पाक की माँ कौन थी? कुरान पढ़ने वाली, तहज्जुद गुजार। ख्वाजा बख्तियार काकी की माँ कौन थी? कुरान पढ़ने वाली। 15 पारे का हजरत मोहतरम हुजूर ख्वाजा बख्तियार काकी हाफिज कुरान बनकर पैदा हुई। क्यों? कि उसकी माँ 15 पारे का हाफिजा थी। हजरत मोहतरम हुजूर गौसे पाक 18 पारे का कुरान पाक हाफिज बनकर पैदा हुए। क्यों? कि इनकी माँ सैयदा उम्मुल खैर फातिमा 18 पारे का हाफिज कुरान थी। माँ कुरान की तिलावत करती थी, बेटा सुन सुन के याद कर लिया करते थे। गौसे पाक जब पैदा हुए तो 18 पारे का हाफिज कुरान बनकर पैदा हुए। अपनी किरदार पैदा कीजिए, अखलाक पैदा कीजिए। हजरात मोहतरम, कोई उलमा किसी को नहीं चाहता कि बर्बाद हो जाए। हर उलमा यही चाहता है कि जहन्नम से भड़कते हुए आग के शोले से बच जाए, क्योंकि हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी है। शरीयत बताती है कि बेटा अगर बाप को पैसा ना दे तो बाप को हक है कि उसके जेब से पैसे निकाल ले, और अगर बाप का नाफरमान बेटा बन गया तो सरकार फरमाते हैं कुल्लु ज़ुनूबी युअख्खिरुल्लाहु मा शाअ मिनहा इला यौमिल क़ियामती इल्ला उक़ूक़िल वालिदैन। हज़रात मोहतरम, हर गुनाह को रब तबारक व तआला जिस कदर चाहता है मौखर कर देता है, मगर माँ बाप की नाफरमानी करने वालों को, माँ बाप के गुस्ताखों को रब तबारक व तआला मरने से पहले सजा अता कर देता है। इसलिए माँ बाप को ना दुखाओ। सरकार ने फरमाया है अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस है। इसका मतलब ये निकलता है कि सरकार ने जो कहा उलमा अंबिया के वारिस है, तो सरकार कल क़यामत के दिन उलमा से फरमाएंगे मैंने तुम्हें उलूम का वारिस बनाया, दौलत का वारिस नहीं, उलूम का वारिस बनाया, कि तुम लोगों तक उलूम पहुंचाओ, शरीयत पहुंचाओ। कोई गलत रास्ते पर चल रहा है उसको दीने इस्लाम पर लाओ, उसको शरीयत मुस्तफा बताओ। ऐ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप क्या समझते हो? गांव में डीजे बजाते हो और ये गलत गलत हरकत करते हो, मेरे दिल में तकलीफ नहीं पहुंचती है क्या? ख्वाजा गरीब नवाज के दिल में तकलीफ नहीं पहुंचती है क्या? हुजूर आला हजरत के दिल में तकलीफ नहीं पहुंचती है क्या? मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के दिल में तकलीफ नहीं पहुंचती है क्या? इमाम हसन इमाम हुसैन ने जो दीन इस्लाम की खातिर पूरे खानदान को लुटा दिया, इमाम हुसैन के दिल में तकलीफ नहीं पहुंचती है? क्योंकि हम शरीयत बता रहे हैं। अगर जो शरीयत को ना मानेगा तो सब के सब तकलीफ में हो जाएंगे। और कल क़यामत के दिन जब सरकार हमसे पूछेंगे ओ मौलाना कबीर आलम रज़वी, जरा ये तो बताओ मैंने तुम्हें अल उलमा वरसतुल अंबिया का लक़ब दुनिया में क्यों दे करके आया था? इसलिए कि शरीयत लोगों को बताओ, शरीयत लोगों तक पहुंचाओ। क्या तुमने लोगों को समझाया था? क्या तुमने लोगों के दिलों में शरीयत बताया था? अल्लाह अकबर। इतने बड़े मजमे में मैदान महशर जो कायम होगा वो तो क्रिकेट के मैदान की तरह नहीं होगा, बल्कि अव्वलीन व आखिरीन तमाम के तमाम लोग जमा होंगे। अब बताओ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वहाँ मौलाना कबीर के पास क्या जवाब होगा? यही जवाब होगा मैं क्या करूँ हुजूर, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने हर चंद हर लम्हा कोशिश की शरीयत बताने की, समझाने की, मगर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या बताऊं, लोगों ने माना नहीं। अल्लाह अकबर। अब वहाँ इंतजाम होगा, वहाँ फैसला होगा, कौन अबू जहल बन गया, कौन अबू लहब बन गया, कौन उतबा बन गया, कौन शेबा बन गया। उतबा, शेबा, अबू लहब, अबू जहल बनने वाले जहन्नमी है,
और उमर फारूक, अबू बकर सिद्दीक, उस्मान गनी, अली बनने वाले जन्नती है। सरकार ने दुनिया में जन्नत की बशारत दे दी है। हजरात मोहतरम, सरकार ने दुनिया में ही बता दिया है कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है। अब जहन्नमियों के पैरोकार बनोगे तो जहन्नम में फेंक दिए जाओगे। उस वक्त ये मत कहना कि मौलाना कबीर आलम सर से लेकर पांव तक पसीना टपकेगा, कोई पुरसाने हाल ना होगा जिसकी खातिर दौलत जमाए हो, हरामी का हो या हलाल का हो या मार कर हो या सूद खाकर को, तेरा बेटा तुझे बचाने के लिए नहीं आएगा। तेरी बीवी की खातिर, उसकी इशरत के लिए, उसकी शोहरत के लिए, उसकी नुमाइश के लिए दौलत इकट्ठा किया। तेरी बीवी भी एक एक नेकी को मोहताज होगी। तू शोहर है, तू भी एक एक नेकी को मोहताज होगा। कोई एक नेकी देने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। उस वक्त उस इमाम की जरूरत पड़ेगी जिसको लोग आज हिकारत की नजर से देखते हैं, जिसको लोग आज चुगली करते हैं, जिसके पीछे लोग आज गीबत करते हैं, जिसके पीछे लोग आज बुराई करते हैं, जिसकी अहमियत को नहीं समझते, जिसकी इज्जत को नहीं समझते, जिसकी अजमत को नहीं समझते, जिसके वकार को नहीं समझते। अरे इमाम को मकाम देने वाला कोई दुनिया का लीडर नहीं, कोई दुनिया का मौलवी नहीं, ना तो दुनिया का कोई लीडर इमाम को मकाम दिया, बल्कि इमाम को जो मकाम दिया है वो अजमत, वो रिफत वाला मकाम दिया इमाम को कि अगर बताऊंगा इंशाअल्लाह, खुदा की कसम कहता हूं, इस बात पर अगर अमल कर लोगे जिंदगी भर इमाम के पीछे बुराई नहीं करोगे। अल्लाह अकबर। इमाम की इज्जत नहीं करते हो, इमाम कहते तनख्वाह बढ़ाओ, ऐसे इमाम को निकाल दिया जाए। गांव में हर इंसान 15,000 20,000 रुपए कमाते हैं, पूरे गांव मिलकर इमाम का तनख्वाह 15,000 नहीं कर सकते हैं। अगर कह दिया इमाम की छुट्टी कर दो, गांव में सब 15-20,000 कमाते हैं। आज तो होना ये चाहिए था कि इमाम साहब को सब लोग मिलकर चलो अरफा में भेजे, इमाम साहब को सब लोग मिलकर चलो हज करवाने के लिए भेजते हैं। क्यों? कि तुम्हें इमाम का मकाम मालूम नहीं, तुम यही समझते हो कि इनको क्या आता है, जो आता है बकर बकर करता रहता है, बोलता रहता है। सुनो, अगर इमाम साहब कह दे सूद खोना हराम, आज का माहौल सूद खोरों की एक जमात खड़ी हो गई। इमाम साहब कह दे गीबत करना हराम, गीबत करना बहुत बड़ा गुनाह, गीबत करना अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना, गीबत करना जिना करने से बड़ा गुनाह है। अगर इमाम साहब ने कह दिया, गीबत करने वालों की एक जमात खड़ी हो गई, इमाम साहब के पीछे पड़ गए। इमाम साहब ने अगर चुगलखोर या चोरों के बारे में तकरीर कर दी, चोरों की एक जमात खड़ी हो गई। खुदा की कसम कहता हूँ, तुम्हारा जमात है मिट जाएगी, मगर मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इमामों की जमात कायम रहेगी। क्योंकि इमामों को मकाम देने वाला कोई दुनिया का लीडर नहीं, बल्कि रब फरमाता है। अगर मैं गलत बोलूं, कुरान पाक का कोई एक अल्फाज शेर जबर का इनकार कर दे तो काफिर हो जाएगा। रब फरमाता है, मैं पारा नंबर भी बताता हूँ, रुकू नंबर भी बताता हूँ। पारा नंबर 15, रुकू नंबर 7 खोल करके देख लो। रब फरमाता है, इमामों को हिकारत की नजर से देखने वालों, गौर करो, मेरी बात को सुनो और अमल करो, दुनिया बन जाएगी, जिंदगी सवर जाएगी। रब फरमाता है, यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बेइमामिहिम कल क़यामत के दिन लोग अपने अपने इमामों के साथ उठाए जाएंगे। नहीं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, असल में बात यह है कि आप लोगों को असर इसलिए नहीं होता है कि आप लोगों के दिल शरीयत नहीं है, आप लोग जानते नहीं है कि शरीयत क्या है। इसीलिए कहता हूँ, खुदा के वास्ते अपने घरों को संभालो। कोई कुछ भी करे, किसी से कोई ताल्लुक मत रखो, कोई रिश्ता मत रखो। कोई नाचे वहाँ अपने औलाद को रोको, कोई डांस करे वहाँ अपने औलाद को रोको, कोई डीजे बजाए अपने औलाद को रोको, वरना औलाद की वजह से बाप माँ भी जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे। कहेगा, सवाल होगा, कतरे कतरे पानी, पानी का सवाल होगा। इसीलिए कहता हूँ, अल्लाह ताला हम सबों को मेरी इन बातों पर अमल करने की तौफीक दे, उलमा से सच्ची मोहब्बत, इमाम का मकाम समझने की तौफीक दे। वाह दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह।